For today's meditation, we are going to look at the book of Malachi. आज के मनन के लिए हम देखेंगे मलाकी के पुस्तक में। When you look in the book of Malachi, that's the last book of the Old Testament, last book in the Old Testament. ये जो मलाकी नबी का लिखा हुआ पुस्तक है, ये पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है। And we see that it is a prophecy for Israel. और ये हम देख पाते हैं कि ये इज़राइल के लिए एक भविष्यवाणी है। But as we go through different situations in our present country, and as we go through our different situations because of COVID, I want to use some of those things that have been mentioned to remind us of what God is doing. लेकिन इस वक्त जैसे हम कोरोना के वजह से हमारे जीवनों में अलग अलग संघर्षों का सामना करते हैं, तो इस पुस्तक में से हम अपने आप को याद दिलाना, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है। We are going to look at 5 questions that the people are asking and the 5 responses of God to the questions. और आज हम देखेंगे 5 ऐसे सवालों को जो लोग परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर के 5 उत्तरों को हम आज मनन करेंगे। When you look at the book of Malachi, it was written at a time when the Israelites had come back they had come back to Jerusalem. They were in exile. They have come back to Jerusalem. They have rebuilt the temple and they were also worshiping God. और मलाकी का जो पुस्तक है वो एक ऐसे समय पे लिखा गया था जब इजरायली लोग अपने बंधुआई से वापस यरूशलेम पहुंचे थे और and they were worshiping God with sacrifices and they rebuilt the temple. और तब तक और उन्होंने जो मंदिर है, जो टूटा हुआ जो मंदिर था, उसे दोबारा उन्होंने पुनर्स्थापन किया, दोबारा बनाया और वहां पे प्रभु के सामने बलि चढ़ाने लगे थे। तब मलाकी ने ये लिखा था। But despite their rebuilding the temple and their offering sacrifices, they were finding that they were having so much of problems in their lives. लेकिन इस मंदिर को दोबारा बनाने के बावजूद, दोबारा मंदिर के अंदर परमेश्वर के लिए जो बलि है उसे पुनर्स्थापन करने के बावजूद भी वो ये देख रहे थे कि उनके जीवन में बार-बार परेशानियां आ रही है। They assumed that once they came back to Jerusalem, now the Messiah would come, they would be liberated, they would have freedom, they would have deliverance, and there was a lot of assumptions and there was a lot of expectations when they came back to Israel. उन लोगों ने ये सोचा था कि जब हम यरूशलेम वापस जाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे मंदिर का और दोबारा जो बलिदान है उसे स्थापन करेंगे, तब तक में मसीहा आएगा और सब कुछ हमारे साथ ठीक रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने सोचा था, जिसके कारण उनके कुछ उम्मीद भी थे। Because these expectations were not met, they began to have questions to God. और क्योंकि उनके उम्मीद पूरे नहीं हुए, तो वो परमेश्वर के सामने सवाल रखने लगे। The first question we read, it is in that second verse, Malachi 1 verses 2. It says, "How have you loved us?" और जो सबसे पहला सवाल हम देख पाते हैं मलाकी की पुस्तक पहले अध्याय के दूसरे आयत में, वहां पे वो ये पूछते हैं कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। They are beginning, the first question is a question of relationship. वो रिश्ते का सवाल परमेश्वर के सामने रखते हैं। And the prophecy is so beautiful. The book begins with God's affirmation of His love for the Israelites. और ये जो पुस्तक है, ये जो भविष्यवाणी है, ये पुस्तक की शुरुआत ही ऐसे होती है। परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में बताता है कि प्रभु उनसे प्रेम रखता है, उस बात को उनको स्मरण दिलाता है। God says, He says, "I have loved you." वो यहाँ पे कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। Many times when we go through dark experiences, when we go through wilderness experiences, when we see that our expectations are not being met, we begin to question the love of God. हम कई बार हमारे जीवनों में अंधकार के अवस्था से होकर गुजरते हैं, जब संघर्ष के अंदर से होकर गुजरते हैं, तो हम कई बार परमेश्वर हमारे प्रति प्रेम रखता है या नहीं, ऐसे एक सवाल हमारे अंदर आ सकता है। You know, in fact, when you read that passage, actually you read 1 to 5, you see God is comparing Jacob and Esau and He's saying how He has loved Jacob. और देखिए, ये जो भाग है, पहले आयत से लेकर 5वें आयत तक का ये जो भाग है, यदि इस भाग को हम पढ़े तो वहाँ हम देख पाते हैं कि परमेश्वर
याकूब को या तो फिर इज़राइल को येशाव के साथ या तो फिर एदोम के साथ तुलना करता है और कहता है कि कितना अधिक इज़राइल मैंने तुझसे प्रेम किया He है। says, he gives two different people and he says, listen, you and this person. And he says, I have loved you over and above that person. और परमेश्वर यहाँ पे दो व्यक्तियों को रखता है और वो दोनों को तुलना कर कर कहता है कि इससे कितना अधिक मैंने तुझसे प्रेम किया है। As every one of us who have had the opportunity to know the Lord, who had the opportunity to hear the word of God, God tells us, I have loved you. हमें से हर एक व्यक्तियों से जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और प्रभु के पीछे हम हो लिए, प्रभु हमें देखकर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Many times when we go through certain situations, we feel like God does not love us. कई बार कुछ परिस्थितियों से होकर जब हम गुजरते हैं, हमें कई बार ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। Many times when our expectations are not met, when our desires are not being fulfilled, we feel like God's love is far away from us. कई बार जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता, जिस प्रकार हम उम्मीद रखते हैं उस प्रकार से बातें हमारे जीवन में नहीं होती, तो हम सोचने लगते हैं कि हो सकता है प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। God wants to affirm you. God says, I love you. लेकिन आज प्रभु आपको इस बात का हौसला देना चाहता है कि नहीं, वो आपसे प्रेम आज करता है। Before the foundations of the earth, I had thoughts about you and I had plans for you. संसार की नींव डालने से पहले मैंने तुम्हारे प्रति सोचा था, मैंने तुम्हारे प्रति मेरे योजना बनाए। He says, not just I have plans for you, I have written down my plans about you. प्रभु कहता है कि सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारे बारे में मेरे योजनाएं या प्रतिज्ञाएं हैं, मैंने उसे लिख के रखा था। The second question is in the 6th verse. और इजरायलियों का सवाल, दूसरा सवाल परमेश्वर के सामने जो वो रखते हैं, वो हम 6ठे आयत में देख पाते हैं। It says, how have we despised your name and how have we polluted you? In the 6th and the 7th verse, 6th the last part and the 7th the first part. और 6ठे आयत के आखिरी भाग में और 7वें आयत में वो लोग इस प्रकार पूछते हैं कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, ऐसे प्रभु कहता है। तो वो पूछते हैं तो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। So the second question over here is a question about religion. तो यहाँ पे दूसरा सवाल इनका जो है वो धर्म के हिसाब से एक सवाल पूछते You हैं। see, often we hear, many people say Christianity is not a religion, it is a relationship. और कई बार लोग इस प्रकार कहते हैं, हमने कई बार सुना है जब लोग कहते हैं कि मसीही जीवन जो है वो एक धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है। Yes, it is a relationship. सही बात है, वो एक रिश्ता है। It is because he loved us first, we have loved him back. वो इसलिए कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए हमने उससे प्रेम किया। But what happens afterwards? लेकिन उसके बाद क्या होता है? There is obedience required for love. लेकिन प्रेम को दर्शाने के लिए आज्ञाकारी होना जरूरी है। There is a covenant relationship that we have entered into when we have returned the love to God. और हमने जो परमेश्वर के साथ एक वाचा के एक रिश्ते में हमने प्रवेश किया, जब हमने परमेश्वर से प्रेम किया। You see, today's world we exaggerate love. देखिए, आज के दिनों में, आज के संसार में हम प्रेम को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। We celebrate love that has no commitments. हम ऐसे प्रेम को बढ़ा चढ़ा के उसको बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसे प्रेम को जिसमें कोई एक कमिटमेंट ना हो। You see, if you look at any movie today, any movie, you will see that they celebrate love that has no commitments. अब आज किसी भी पिक्चर को देखिए, किसी भी मूवी को देखिए, उस मूवी में ऐसे प्रेम को दिखाते हैं और ऐसे प्रेम को बढ़ा कर दिखाते हैं जिसमें लोग आपस में एक कमिटमेंट या एक जवाब नहीं देते, या एक दूसरों के प्रति जिनका एक लंबे समय के लिए एक कमिटमेंट ना हो, ऐसे प्रेम को दिखाते हैं। Here what was happening is the priest, this is talking about the priest, he's saying the priests were offering unholy sacrifices before God. और यहाँ पे हम देख पाते हैं याजकों के बारे में लिखा है कि याजक जो है परमेश्वर के सामने अशुद्ध बलिदान को चढ़ाते थे। God begins to say, you're offering blind animals, lame animals, you're offering animals that are blemished before me. और
परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस प्रकार के जानवरों को मेरे सामने ले आते हो जिसमें कलंक है, जो चोट पहुंचे हुए है। You know, this is especially spoken. The first part that I mentioned was spoken to the Israel as a whole. The second part that is spoken to the priests, the leaders of Israel. यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पहला भाग जो है परमेश्वर पूरे इज़राइल से करता है, लेकिन इसका जो दूसरा भाग है परमेश्वर खासकर याजकों से बात करता है। This is one thing, and I know many of you are not pastors or leaders, but this is one thing that we need to ask about our leaders. और ये जो है ये बात मैं जानता हूँ आप में से अनेक लोग अधिकतर लोग नेतृत्व के एक पोजीशन में नहीं है या तो फिर पास्टर्स नहीं है, लेकिन आज के दिनों में हमें ये एक सवाल हमारे अगुओं के बारे में, हमारे पास्टरों के बारे में पूछना जरूरी है। This is something that God asked me myself. परमेश्वर ने मुझसे ये सवाल पूछा था। Are you offering sacrifices that are not perfect? परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि क्या तू ऐसे बलिदान को चढ़ाता है जिसमें कलंक है? What does it mean for leaders to offer imperfect sacrifice? जो अगुए हैं, अगुओं के बारे में यदि ये कहना है कि वो कलंक वाले या दोष वाले जानवर को बलि चढ़ाते हैं, उसका मतलब क्या है? You see, God has called leaders to stand and lead people to worship. परमेश्वर ने अगुओं को इसलिए बुलाया है ताकि वो औरों को परमेश्वर की आराधना करने में अगुवाई करें। Their responsibility is teach the whole word of God. उनकी जिम्मेदारी है कि वचन को उसके परिपूर्णता में लोगों को सिखाए। You cannot bend the word of God to please people. अब वचन को तोड़कर लोगों को खुश करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उसे मरोड़कर लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते। You cannot focus only on certain aspects of the word of God, ignoring the other aspects of the word of God. अब वचन के कुछ भागों को ध्यान देते हुए, कुछ भागों को सिखाते हुए, बाकी के भागों को आप छोड़ नहीं सकते। You have a great responsibility to give the whole word, the whole counsel of God to the people of God. और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि लोगों को परमेश्वर के वचन उसके पूरे परिपूर्णता में लोगों के सामने रखे। Another aspect of it is this. और इसकी दूसरा उसका हिस्सा ये है, इस प्रकार है। In the New Testament, we are all called to offer our bodies as a living sacrifice before God. नए नियम के इस समय में हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसे एक बुलाहट दी है कि हम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने समर्पण करें। How do we offer our bodies? हम अपने शरीर को किस प्रकार समर्पण कर सकते हैं? Are there any areas that we have not given to the Lord? क्या हमारे जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो हमने परमेश्वर के सामने समर्पण ना किया हो? Once upon a time there was a man who was getting ready for baptism and he entered into the baptism pool. और एक समय में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए बपतिस्मा के पूल में निकला। As he was entering into the baptism, you have to be immersed in water. और देखिए, जैसे हम सब जानते हैं बपतिस्मा का मतलब ये है कि पानी में डूबना है। As he was being immersed, he put one hand out of the water. और जैसे उसको डुबारे थे पास्टर, तो उसने एक हाथ बाहर यूं खड़ा किया। So pastor said, no, your whole body needs to be immersed. It is a baptism means immersion, so your whole body needs to be immersed. पास्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बपतिस्मा माने पूरे शरीर को डुबाना जरूरी है, तो तेरे पूरे शरीर को पानी के नीचे जाना जरूरी है। He said, pastor, no, I have this one hand. If this one hand gets baptized, there's a person who has done me wrong. I need to hit him back. And if this hand is baptized, I cannot do that. So I'm not baptizing this hand. तो उसने कहा, नहीं पास्टर, मैं ये हाथ को मैं बाहर रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे उसे थप्पड़ मारना अभी बाकी है, तो इस हाथ को मुझे बाहर रखना जरूरी है। अगर ये बपतिस्मा में अगर ये डूब जाए तो मैं उसे थप्पड़ नहीं मार पाऊंगा। Many times we give ourselves to the Lord, but we hold certain areas away from the Lord. कई बार हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते तो है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को हम उसको प्रभु से अलग कर छिपा कर या हम अपने लिए अलग करके रखते हैं। You see what is spoken. You can read it later. They're coming and they're worshiping God. यहाँ पे देखिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं इन भागों को। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि वो आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। But the worship is not complete. लेकिन उनका जो आराधना है वो पूरा नहीं है। Certain areas are held away from God.
कुछ भाग है, कुछ क्षेत्र है जो प्रभु से अलग कर कर उन्होंने छिपा के रखा You know है। what God says in the 10th verse? He says, "Oh, that there were one among you who would shut the doors, that you might not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure on you, says the Lord of hosts. I will not accept an offering from your hand." उसके 10वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु इस प्रकार कहता है कि भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। This is what has happened today all around the world to the churches. आज संसार भर के कलीसियाओं के साथ यही हो रहा है। The church has been shut down. कलीसियाओं जो है सारे बंद हो चुके हैं। The church has been shut down, but we have still the opportunity to offer a sacrifice, a whole sacrifice before the Lord. हर जगह पे जो है गिरजाघर बंद हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम अभी भी एक परिपूर्ण बलिदान को प्रभु के सामने चढ़ा सकते हैं। You read that 11th verse, and I'm not going to focus on the whole verse, but that 11th verse, one part it says, "My name will be great among the nations." और उसके 11वें आयत में प्रभु यूं कहता है, अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। And it gives a reason. It says, "In every place incense will be offered to my name, and a pure offering." और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। Previously, the worship was being offered from the temple, but now God is saying, in every place, worship will be offered. पहले ऐसे होता था कि सिर्फ गिरजाघर के अंदर ही भेंट चढ़ाया जाता था, लेकिन अभी परमेश्वर कहता है हर जगह मेरे नाम पे भेंट चढ़ाया जाएगा। This is the amazing opportunity that has been offered to us by COVID. Let us not lose that opportunity. देखिए, ये एक सुनहरा मौका है जो कोरोना के दौरान प्रभु ने हमें दिया है। हमें इस मौके को हमारे हाथ से खोना नहीं है। Incense offered from every place, so that God of heavens will be pleased. और हर कहीं परमेश्वर के नाम पर धूप चढ़ाया जाना। And then again, as we go forward, the next question we see is in the second chapter and the 14th verse. और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उनका तीसरा सवाल हम देख पाते हैं दूसरे अध्याय का चौथे आयत में। And you read that in the 14th verse it says, "But you say, why does he not?" और वहां पे परमेश्वर कहता है कि इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी ओर से 2 verses 14. अच्छा, उसके हिंदी में हम उसको 13वें आयत में पढ़ सकते हैं, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? Why does he not? और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों, परमेश्वर क्यों ऐसे नहीं करता? What was happening was, in the 13th verse, you will see the context. They were coming to the Lord's altar, they were weeping and groaning, and they were crying before the Lord. और उसके 13वें आयत में उसके ऊपर वाले भागों में हम देख पाते कि वो परमेश्वर के पास आते हैं और आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। They're crying, but because there is no response from God. वो रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा। And this is the third question. तो ये तीसरा उनका ये सवाल The है, question of response. कि प्रभु उनको जवाब क्यों नहीं देते? Many times we pray, we cry before God, कई बार हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, but we did not receive a response from God. लेकिन हम परमेश्वर से एक उत्तर कई बार नहीं पाते। And we begin to wonder and question, why does God not respond? और कई बार हम अपने आप से ये सवाल पूछने लगते हैं कि परमेश्वर क्यों उत्तर नहीं देता। One more question you see in the 17th verse. It says, "How have we wearied him?" And then it goes on, and you say, "Where is the God of justice?" और उसके 17वें आयत में वो फिर से सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस बातें में उसे उकता दिया, और फिर वो आगे पूछते हैं कि
कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। Where is the God of justice? वो पूछते हैं कि परमेश्वर का न्याय कहाँ है, या न्यायी परमेश्वर कहाँ है। So here the people, there is one thing that they are experiencing. देखिए यहाँ पे लोग कुछ ऐसी बातों का अनुभव कर रहे हैं। They are seeing God is not responding to their tears. वो देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके आंसुओं के प्रति कोई उत्तर नहीं दे रहा But at the same time they are seeing those who are evil and those who are wicked, they are prospering. लेकिन साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि जो दुष्ट है, जो प्रभु को नहीं मानते, वो उन्नति पाते हैं। And when they see them prospering, when I say prospering, they are seeing them financially being blessed. They are inheriting the wealth of the land. When they see that, और जब वो देखते हैं कि जो आर्थिक रूप में और लोग उन्नति पाते हैं, आर्थिक रूप में और संसारिक रूप में, शारीरिक रूप में वो उन्नति में जाते हैं, they begin to ask, why is God delighting in them? तो वो ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु उनमें क्यों प्रसन्न है, प्रभु हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है। And this is many times the question that we have. और कई बार हम भी ऐसे ही सवाल पूछते हैं। We are crying, हम रोते हैं, but God is not responding. और हमें लगता है प्रभु हमारे आंसुओं को नहीं देखता। The people who do not know the Lord, they are thriving, they are flourishing. और वैसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो बुराई करते हैं, वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। God begins to say, परमेश्वर कहता है, He says there is one thing, one of the reasons why I am not responding is this. और परमेश्वर उसका कारण देता है कि क्यों मैं उत्तर क्यों नहीं देता, उसका एक कारण ये है। He says because you have not taken care of your marriage. और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तुमने अपने दाम्पत्य जीवन को ध्यान से नहीं रखा। What was happening there? वहां पे क्या हो रहा The था? people were divorcing their spouses. लोग अपने पति को, अपने पत्नी को तलाक देते थे, And they were marrying other people. और वो और लोगों से विवाह करते थे। And God is saying, I am watching your marriage. और परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन के ऊपर है। In your marriages you have been unfaithful. पर प्रभु कहता है कि तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में तुम विश्वास योग्य नहीं रहे हो। You have been unfaithful and you have destroyed your marriage. परमेश्वर ने कहा है कि तुम विश्वास योग्य नहीं रहे हो, और जिसके कारण तुमने अपने विवाहित जीवन को नाश कर दिया है। God says, listen, I am watching and I'm seeing the breaking of the covenant. परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, और मैं देख रहा हूँ किस प्रकार तुमने वाचा को तोड़ा है। In fact, you read the 16th verse, it says, for the one who does not love his wife but divorces her, says the Lord God of Israel, covers his garment with violence, says the Lord of hosts. 16. 316 216. इसके दूसरे आयत के 16वें आयत में दूसरे अध्याय के 16वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। परमेश्वर यूं कहता है कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। You see, some of you might be struggling in your marriages. देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो। I want you to know God is watching over it. मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर अपना नजर रखा हुआ God है। is paying attention to the covenants that are made, and He is making sure that the covenants are being honored. और परमेश्वर उन वाचाओं के ऊपर अपना ध्यान रखता है, और परमेश्वर इस बात पे बहुत ही अहम देता है, ध्यान करता है कि उस वाचा को लोग पूरा करें। He says, and he goes on to say in the 16th verse, the last part, it says, so guard yourselves in your spirit and do not be faithless. और 16वें आयत के आखिरी भागों में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। You need to guard your spirit. अपने
आत्मा को हमें चौकस रखना जरूरी है। You see, this is something that we need to be very, very careful in these days. इन दिनों में हमें इस बात पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। God has called us into relationships. परमेश्वर ने हमें रिश्तों में प्रवेश होने के लिए बुलाया है। And marriage is the most beautiful relationship that showcases the relation that is a replica of the relationship between Christ and the church. और विवाहित जीवन एक ऐसा रिश्ता है जो प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच में जो संबंध है उसका एक चिन्ह है, उसका एक प्रतीक है इस संसार में। And so we need to be careful how we and what we do with our marriages. और हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपने विवाहित जीवन को कैसे बिताते हैं। Another thing, as we continue to read, the next question I mentioned in the 17th verse, we need to be careful with our words. और 17वीं आयत में उनका दूसरा सवाल ये है, परमेश्वर उनसे कहता है कि हमें अपने शब्दों को लेकर, अपने वचनों को जो मुंह से निकलता है उसे लेकर ध्यान पूर्वक रहना He says, you have wearied the Lord with your words. परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। We need to be careful with the words that we speak. हमारे मुंह से जो बातें निकलती है उसको लेकर हमें बहुत ही चौकस रहना जरूरी है। They are not speaking this to God. ये जो बातें के बारे में परमेश्वर कहता है But वो लोगों ने परमेश्वर से नहीं कहा। They are speaking amongst themselves. They're saying, look, others are being blessed. Others who are not loving the Lord are getting better, and they prospering in the land. Look at that, and they are talking amongst themselves. और ये जो बातें हैं उन्होंने एक दूसरों से कहा है, उन्होंने आपस में कहा है कि देखिए उन लोगों को देखो जो प्रभु को नहीं जानते, उन लोगों को देखो किस प्रकार वो बढ़ते हैं। ये बातें उन्होंने आपस में कहा है। God is a silent listener in our every conversation. परमेश्वर हमारे हर बातों को सुनने वाला एक ईश्वर है। And when our words, when we speak, use these kind of words, he gets tired of all our words. और जब हम इस प्रकार की बातों को कहते हैं तो परमेश्वर हमारी इन बातों को सुनकर वो थक जाता है। It is like some people that you who have always this negative spirit. और वो इस प्रकार है कि कुछ लोगों के अंदर हमेशा एक नकारात्मक आत्मा है। They're always looking at the bad of things. वो जीवन में हर चीज के ऊपर चीज में नकारात्मक बात को देखते हैं, नकारात्मक चीजों को सोचते हैं। We will try to be away from them. हम ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। Because their words bring our spirit down. क्योंकि उनके शब्दों के कारण हमारी जो आत्मा है वो नीचे चला जाता है। God saying, listen, I am being brought down by your words, by listening to your conversations. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। You go ahead in the 3rd chapter, he says, in the 3rd chapter, in the 2nd verse, who can endure the day of his coming and who can stand when he appears? और तीसरे अध्याय के दूसरे आयत में हम देख पाते वो कहता है कि उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा। And who can stand when he appears? Who can endure the day of his coming? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। Jesus is coming back very soon. यीशु बहुत ही जल्द वापस आ रहा है। You know, we might not have seen him today. देखिए हो सकता है आज हमने उसको देखा नहीं। But the Bible is true. लेकिन बाइबल एक सच्चा पुस्तक है। In the twinkling of an eye, we will meet our Maker. पलक झपकने पर हम हमारे सृष्टिकर्ता से मिलेंगे। We will have to stand before his judgment seat and give an answer for all that we have done. हमें उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होकर हमने जो भी हमारे जीवन में कर्तव्य किया है हर चीज के लिए जवाब देना जरूरी होगा। And many times because we feel like God is not responding, we are speaking words that God is listening to. और कई बार हमें यूं लगता है कि परमेश्वर नहीं सुनता, तो इसलिए हम ऐसे शब्दों को कहते हैं, ऐसी बातों को हमारे मुंह से बोलते हैं जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि प्रभु सुनता ही नहीं है तो कुछ भी बोल पाए। You know what he says? He is going to be like a refiner and he will refine with fire. और वहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर एक शुद्ध करने वाला बनेगा और वो आग के साथ शुद्ध करेगा। In the 2nd verse, he shall be like a refiner of fire. और वो शुद्ध करेगा और जिस प्रकार सोना को जो है सुनार जिस प्रकार सोने को
शुद्ध करता है उस प्रकार शुद्ध करेगा। You know, when we come before God and His fire burns us, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं उसकी उपस्थिति में, जब उसकी आग हमें जलाती है, उसकी every word that we have spoken will be the dirt that will be strained out. तो हर एक ऐसा शब्द, हर एक ऐसी बातें जो हमने बोला है वो उस गंदगी के समान है जो आग के अंदर डालने से निकल जाती है। God will refine us one day. परमेश्वर हमें एक दिन शुद्ध करेगा। And that is another thing about the Holy Spirit. और वही पवित्र आत्मा का काम है। When we talk about a baptism by fire, जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आग से हमें बपतिस्मा देता है, it is not an ecstatic experience. वो कोई एक ऐसा अनुभव नहीं है, but rather it is the Holy Spirit will, like the fire of God, will point out every single area that we need to seek repentance, and we need to seek repentance for it. लेकिन वो इस प्रकार है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हर एक उन भागों को, हर एक उन क्षेत्रों को हमें दर्शाएगा, हमें दिखाएगा कि कहाँ हमें मन फिराना जरूरी है। If we do not seek forgiveness on this earth, यदि हम इस संसार में मन ना फिराए, on the day He comes, तो जिस दिन वो आएगा, if we do not shine so bright that His face can be seen, we might be thrown aside. तो उस दिन यदि हम इस तरह से ना चमके कि उसका चेहरा हमें दिखे, तो हो सकता है वो हमें उसके सामने से फेंक दे। The fourth question is the question in the 6th verse, 3 verses 6. चौथा सवाल वो है कि तीसरे अध्याय के 6ठे आयत में हम देख पाते He हैं। said, we say, but you say, how shall we return? और 6th अध्याय 3 verses 6. Malachi 3 verses 7. उसके 7वें आयत में हम देख पाते हैं, वो कहता है कि परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। This is a question of repentance. ये जो है मन फिराने के बारे में प्रभु बात करता है। You see, once upon a time we repented before God. देखिए, एक ऐसा समय था हमारे जीवन में जब हमने परमेश्वर के सामने मन फिराया। Praise the Lord for that. परमेश्वर की स्तुति हो कि हमने इस प्रकार Once किया। upon a time we lifted up our hands, we said the repentance prayer, we said the Lord's prayer, and we repented and we returned to the Lord. देखिए, एक ऐसा समय था जब हमने हाथ उठाया, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर मन फिराया और मन फिरावे का एक अनुभव हमारे जीवन में आया। But repentance is not a one-time event. लेकिन देखिए, ये जो अनुभव है वो एक समय का एक अनुभव नहीं है। Repentance is a daily event. वो मन फिराने का जो अनुभव है वो प्रतिदिन होना जरूरी है। It does not mean that we keep repenting of the things that we had once upon a time done. इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी एक बार पुराने समय में जो किया उसी बात के लिए हम हर बार मन फिराए या रोज मन फिराए। But rather, whatever new thing that the Lord is reminding us to repent of, we need to seek repentance. लेकिन वैसा नहीं, उसके बजाय प्रतिदिन जिन बातों को पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में गलती हुई है, उसके लिए हम मन फिराए। Here God is speaking about a specific act of repentance. यहाँ पे परमेश्वर एक प्रत्येक मन फिराने के कारण से किए जाने वाले प्रत्येक एक कर्तव्य के बारे में प्रभु बात कर, एक कार्य के बारे में प्रभु बात करता है। God is asking them to repent and they are asking how can we repent? परमेश्वर उनसे कहता है मन फिराओ, और वो पूछते हैं कि हम कैसे मन फिराए। And God is saying, will a man rob God? और प्रभु उनसे पूछता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? The act of repentance is tied to their finances. देखिए, मन फिराने का जो कार्य है वो उनके आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। If you want to know the God of a person, देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में प्रभुता किस चीज कर रही है या उसका प्रभु कौन है, यदि हम देखना चाहे, look where they spend their money. तो आप इस बात को तो आप बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो अपने धन को कहाँ पे किस चीज के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। If we, by looking at how they spend their money and where they spend their money, we know who their God is. यदि हम देखें कि वो अपने धन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, हमें समझ आ जाता है कि उनके लिए प्रभु कौन है। You see, over here it's saying your tithes and your contributions, you have robbed God of it. और
परमेश्वर 8वें आयत में कहता है कि दशमांश और उठाने की भेंटों में परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे लूटा है। Many times when we think about tithing, जब हम कई बार दशमांश के बारे में बात करते हैं, we think about this belongs to me, I am giving it to God. कई बार हमें ऐसे लगता है कि ये मेरा पैसा है और मैं प्रभु को देता हूँ। God is saying, no, this does not belong to you. प्रभु कहते हैं नहीं, ये तेरा है ही नहीं, This whole thing belongs to me. ये पूरा मेरा है। You are acknowledging that it belongs to me. आप इस बात का अंगीकार करते हो कि वो मेरा है। By tithing, you're just acknowledging what God has given you. दशमांश जब तुम मेरे सामने ले आते हो तो उससे इस बात का अंगीकार करते हो कि मैंने तुम्हें ये दिया है। So tithing, that is why when we do not tithe, God says it is like robbing. और इसीलिए प्रभु कहता है कि जब तुम दशमांश नहीं देते तो वो मुझे लूटने के समान है। When we talk about repentance, जब हम मन फिराने के बारे में बात करते हैं, it is not just about tithing, it's not just about our finances. तो वो सिर्फ हमारे आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई नहीं है। But here God specifically talks to the people because they were not honoring God with their finances. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आर्थिक स्थिति के बारे में इसलिए बात करता है क्योंकि वो अपने धन को लेकर उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया था। When we honor God, जब हम प्रभु को आदर करते हैं, you see, this is one thing that God says. He says, there's a curse because of that. परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तुम इस क्षेत्र में परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसके कारण तुम्हारे ऊपर एक श्राप आया है। But there is also a blessing because of it. लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई एक आशीष भी है। But I would also like to say, with regard to repentance, whenever we do not repent, और लेकिन मन फिरावे के लेकर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी हम मन नहीं फिराते। Now here it is talking about finances, by the way. अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर आर्थिक स्थिति के साथ को लेकर बात कर But रहा I है। want to say, anytime we do not repent before God for any matter that the Holy Spirit convicts us of, देखिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में यदि पवित्र आत्मा हमें कुछ बातों को याद दिलाए और उसको लेकर यदि हम मन ना फिराए तो it becomes a curse for us. तो वो हमारे लिए एक श्राप बन जाता है। Why do we repent? हम क्यों मन फिराते We हैं? want to be restored before God. ताकि हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हो जाए। If I stole something, यदि मैंने किसी चीज को लूटा, if I did not, if anything, any matter that we did not seek repentance of, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए हमने मन ना फिराया हो, God, because of that we are under a curse. तो उसके कारण से हमारे जीवन में एक श्राप आता है। You know how that happens? आप जानते हो क्यों, कैसे होता है? When we do not repent, we give the devil a foothold. जब हम मन नहीं फिराते तब क्या होता है कि हम शैतान को पैर रखने के लिए एक जगह देते हैं। For example, I want to give you, this is talking about money, but I want to give you some other example. मैं यहाँ पे परमेश्वर ने धन के बारे में बात किया है, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। Suppose God tells you, suppose you look at a person in a lustful manner. उदाहरण तौर पर आप किसी व्यक्ति को एक Lustful. I'm not getting the word. मन के अंदर एक बुरे विचार के साथ आप एक व्यक्ति के अंदर की ओर देख रहे हैं। The Holy Spirit convicts you of it. और पवित्र आत्मा आपके अंदर उस चीज के लिए आपको छुपता है। If you do not immediately seek forgiveness, लेकिन तुरंत ही यदि आप परमेश्वर के सामने मन ना फिराए, the devil has an opportunity to hold onto it. तो वहां पे शैतान के पास एक मौका मिलता है कि उस चीज को पकड़े, आपके जीवन में उस क्षेत्र को वो पकड़ ले। That is called a foothold. उसे हम कहते हैं कि शैतान को पैर रखने का जगह। You see, when mountaineers, when they climb the mountain, देखिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले लोग जब वो पहाड़ के ऊपर they चढ़ते look हैं, for a space where they can put their foot. वो एक ऐसे जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपना पैर रख सकते हैं। And when they find that place, जैसे उनको वो जगह मिलता है, they make that place more and they hit that place more and more, तो वो उस जगह को बार बार मार कर उसको और भी बड़ा बनाने so की that कोशिश करते हैं, their foot can have a strong place within that hole.
ताकि उनका पैर अच्छी रीति से वो उस जगह पे वो रख पाए। But as mountaineers, one after the other, they begin to climb the mountain. लेकिन जैसे पहाड़ को चढ़ने वाले लोग एक एक करके जैसे अधिक ज्यादा लोग ऊपर चढ़ने लगे, These small footholds, each of them begins to need a place to rest also. तो जैसे वो बढ़ते ऊपर जाते हैं, हर एक लोगों को उनको जैसे पैर रखने का ये जो जगह है, उनको सिर्फ पैर रखना ही नहीं, उनको थोड़ा आराम के लिए भी जगह चाहिए So होता है। they begin to dig that hole more and more, and each mountaineer, one after the other, keep digging till they find a place to rest, and that becomes a stronghold. तो जैसे वो पहाड़ों को चढ़ते हैं, सिर्फ वो पैर रखने की जगह को वो और भी बड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक एक कर सभी जैसे वो एक एक करके जो भी चढ़ते हैं उसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और आखिर में वो जगह उनको आराम से बैठने लायक एक स्थान बन जाता है। And that is what the devil does. He keeps hitting in that area, keep attacking in that area, so that the devil has from a foothold he can make a stronghold, make that a stronghold in our lives. और शैतान भी यही हमारे जीवनों में करता है, उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमने मन नहीं फिराया हो, उस क्षेत्र में वो ज्यादा और भी कब्जा करने की कोशिश करता है, और इतना जगह बना लेता है कि हम जैसे कहते हैं एक पैर रखने का जगह था, लेकिन अब वो आराम से बैठने का जगह उसको मिल जाता है। And that is why when the devil, when God wants to protect us, he cannot completely protect us, because there are certain areas that are a stronghold of the devil in our life, and which God cannot reach because we have not given it over to him. और इसीलिए कि कई बार जब परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना चाहता भी है, लेकिन कई बार वो ऐसे नहीं कर पाता, क्योंकि हमने खुद हमारे जीवन में शैतान को स्थान दिया होता है और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। Begin to seek forgiveness. Begin to ask God, repent before God for those matters. परमेश्वर के सामने मन फिराओ, परमेश्वर के सामने उस क्षेत्र में परमेश्वर से माफी मांगना शुरू करो। You read the 12th verse, it says, then all the nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. और उसके 12वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You will be called a land of delight. तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। God will delight in you, and the people will delight in you. दूसरे लोग तुम्हें धन्य कहेंगे, परमेश्वर तुम में आनंदित होगा। That is the beauty of repentance. और यही होता है जब हम मन फिराते हैं। The last question is in the 13th verse. और उसका आखिरी सवाल हम देख पाते हैं 13वीं आयत में। It says, you say, how have we spoken against you? और तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है। This is the question of rebellion. ये जो है एक बलवा का सवाल है। This is a question of rebellion. ये एक बलवा का सवाल है। God is saying that you have used words to speak against me. परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढीठाई की बातें कही है। You read that 13th verse. Your words have been hard against me. परमेश्वर कहते तुम मेरे खिलाफ तुम ढीठ बन चुके थे। You read the 14th verse. It says, you have said it is vain to serve the Lord. What is the profit of our keeping His charge or walking as in mourning before the Lord of hosts? उसके अगले आयत में 14वीं आयत में हम इस प्रकार देखते हैं कि तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? In the previous question I told, in the question of response, I told you sometimes with our words we tire, make God weary. और जहाँ पे परमेश्वर हमारे जवाब का जो सवाल था उस वक्त मैंने ये आपसे बताया कि हमारे शब्दों के कारण जिस बातों को हम एक दूसरों से कहते हैं, हमारे बातों के कारण कई बार हम प्रभु को चोट पहुंचाते हैं। Tired, we make God प्रभु tired. थक जाता है। But here it says
by our words we can rebel against God. लेकिन यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि हमारे बातों की वजह से, हमारे शब्दों की वजह से हम परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर सकते We हैं। are saying, what is the point of following God? यहाँ पे हम कहते हैं इस परमेश्वर के पीछे हो लेने का फायदा क्या हुआ? There is no benefit that I am visible benefit that I am seeing when I follow God. मेरे जीवन में कोई ऐसी लाभदायक बात मैं देख नहीं पाता। Sometimes we measure success and blessing in accordance to the world. कई बार हम हमारे जीवन में जो सफलता है और विजय है उसे संसारिक रूप में हम उसे नापते हैं। We see a person who's healthy, we see a person who has a lot of money, we see a person who has a lot of houses, we see a person who is staying in another country, and he says, oh, they are so blessed. और हम कई बार लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जो धनी है, जो अच्छे सेहत के हैं, जो अच्छे पढ़ाई के हैं, जिनके अच्छे घर है और जो किसी विदेश में रहते हैं, इन सबको देखकर हम कहते हैं अरे ये कितना आशीषित है, ये कितना धनी है, धन्य है। That is a parameter of the world to measure success and blessing. लेकिन ये सारी बातें जो है संसार का एक नापदंड है जिसके द्वारा वो विजय को या विजय संसार जो है विजय को नापती है। To the question of rebellion, लेकिन ये जो बलवा का ये जो सवाल है उसके प्रति प्रभु क्या कहता है? you read in the 16th verse. उसकी 16वीं आयत में हम देख पाते हैं God says, those who feared the Lord spoke with one another. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। To the question of rebellion, the answer is the fear of God. और जो बलवा का जो सवाल है उसका उत्तर प्रभु देता है कि वो परमेश्वर का भय मानना है। Fear God is not it is not like, oh my God is going to destroy me. No. प्रभु का भय मानने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु से डरे। It is rather we are awestruck by his grand purpose and we are awestruck of the magnificence of God. लेकिन उसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के महत्व को देखकर हम एक आराधना के एक एटीट्यूड में आ जाए। You see, it says the Lord paid attention and heard them. और यहाँ पे लिखा है और यहोवा ध्यान 16वीं आयत में, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। A book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। You see, this is where it is so important that we fellowship with one another. और यहाँ पे हम इस चीज की महत्व देख सकते हैं कि हमें एक दूसरों की संगति रखना जरूरी है। You know, we have our Wednesday and our Thursday community groups. हमारा बुधवार और वीरवार का कम्युनिटी ग्रुप We have our morning prayers. और प्रतिदिन सुबह का प्रार्थना सभा है। And maybe you might say, oh, nobody is coming, nobody comes for that. No, very few people comes for those prayers. और हो सकता है आप कहोगे कि अरे उन प्रार्थनाओं में बहुत ही कम लोग आते हैं। Nobody, why should I go? Nobody's very few people are there. हो सकता है आप कहोगे कि मैं क्यों जाऊं, बहुत ही कम लोग आते हैं। Are you looking at the numbers? क्या आप लोगों के नंबर को देख रहे हैं? God says, I am watching those who talk with each other. परमेश्वर कहता है कि मैं लोग आपस में जो बात करते हैं उसको मैं ध्यान पूर्वक देखता हूँ। And in their conversations, I see the fear of God. उनके बातों में मैं परमेश्वर का डर, परमेश्वर के भय को मैं देखता हूँ। And I will recognize them. और मैं उनकी सुधि लूंगा। When we have this amazing opportunity, though COVID has caused us to stay within our homes, we have this amazing opportunity to fellowship with one another. देखिए, कोविड के वजह से हम अपने अपने घरों में बंद जरूर है, लेकिन हमारे पास प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम एक दूसरों के साथ संगति भी करें। And when we meet together in this manner, there's an opportunity to study the word. और जब हम इस प्रकार एक दूसरों के साथ संगति करते हैं तो हमारे पास ये मौका है कि हम वचन को मनन करें। And we are not just studying the word haphazardly, we are studying the word book by book.
और हम जब इस प्रकार मिलते हैं तो वचन को यूं ही नहीं पढ़ते, हम एक एक पुस्तक करके हम उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। It's an amazing opportunity to fear the Lord and an amazing opportunity to honor His name together as a community. तो परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर का आदर करना सुंदर अवसर है। एक सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया है। You read the 17th verse, he says, "They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him." इसके 17वें आयत में हम देखते हैं सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। God says, "I will make them my treasured possession." प्रभु कहता है कि वो मेरे निज भाग ठहरेंगे। It is an amazing opportunity for us, even though we are in this COVID situation, to continue to fellowship with one another. हमारे पास ये सुनहरा मौका है कि चाहे हम कोविड के समय में क्यों ना हो, ये हम एक दूसरों के साथ संगति कर पाए। The Bible says, in the last days, it is very easy to give up the meeting together. और वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में एक दूसरों के साथ मिलना छोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। But the Bible says, "Do not give up the meeting of one another." लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं उस प्रकार एक दूसरों के साथ मिलना या संगति रखना उसे तुच्छ ना समझे। Because when we give up the meeting together, क्योंकि जब इस चीज को हम छोड़ देते हैं, we will still meet, but we will meet to discuss all these other things. तब क्या होता है कि हम एक दूसरों के साथ संगति तो फिर भी करेंगे, एक दूसरों के साथ मिलेंगे, लेकिन उस वक्त हम प्रभु का वचन का मनन नहीं करेंगे, हम और बातों को करने में हम समय बिताएंगे। Our conversations will be about how God has not answered our prayer. Our conversations will be about how God has not done this and that thing in our life. Our conversations will be of rebellion. हमारी बातें जो है बलवा की बातें बन जाएंगी, हमारी बातें जो है ऐसी बातें बन जाएगी, प्रभु ने हमारे जीवन में इस तरह से हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, इस प्रकार के बलवा की बातें हम करने लगेंगे। You read the 4th chapter, 1st verse. चौथे अध्याय का पहला आयत पढ़े। It says, "Behold, the day is coming, burning like an oven." क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। When all the arrogant and all evildoers will be stubble. जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज के खूंटी बन जाएंगे। One day, many people will be just stubble for the fire. और एक ऐसा दिन आ रहा है जब अनेक लोग परमेश्वर के सामने सिर्फ अनाज की खूंटी बन जाते हैं आग के अंदर डालने के लिए। My prayer is that none of us who are part of City Light Church would become stubble for the fire. मेरा यही प्रार्थना है कि हमारे सिटी लाइट कलीसिया के अंदर आने वाले कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अनाज की खूंटी ना बन जाए। And he gives a word there, he says arrogant. और वहां पे परमेश्वर एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो कहता है अभिमानी। It means those who do not respond to the word, do not humble themselves and respond to the word of God. इसका मतलब ये है कि वे लोग जो परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को दीन नहीं करते। There is a blessing that God is going to provide. परमेश्वर का एक आशीष है जो प्रभु हमारे ऊपर देगा। And that blessing is available to us on that day. और वो आशीष जो है हमारे लिए उस दिन उपलब्ध होगा। He says, it says in the 2nd verse, they will rise up with healing on its wings. और दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। They shall rise with healing on its wings. You shall go out leaping like calves from the stalls. और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। There is a day when we will jump. एक समय आ रहा है, एक दिन आ रहा है जब हम कूदेंगे। There's a day when we will rejoice. एक ऐसा दिन आ रहा है जब हम आनंद मनाएंगे। On this day, sir, perhaps because of all that we see, we might not be able to rejoice. हो सकता है आज के दिन, क्योंकि जिन बातों को हम हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं,
हो सकता है आज हम आनंद नहीं मना पा रहे, but continue in the fear of God. लेकिन परमेश्वर के भय में बने रहे, Continue in honoring His name. परमेश्वर के नाम को आदर करने में बने रहे, Continue in fellowship so that we will be able to encourage one another through the word of God. संगति करने में बने रहे, ताकि एक दूसरों को हम वचन के द्वारा उत्साहित कर सकते हैं। On that day we will arise. उस दिन हम भी उठेंगे, On that day we will arise. उस दिन हम उठेंगे। Shall we bow our heads? Shall we pray? आए अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें।